હું જરાક છે ને પેલા લોકોને તું જરા સમજી લે, બહુ સહેલું છે પછી તો કેલ્ક્યુલેશન. यस सर. હા, હું જરા મેસેજ મૂકી દઉં. લિંક મેથ્સ ગ્રુપમાં નથી મૂકી આપણે, પેલામાં તો છે જ, એમાંથી એમાં મૂકી દઈએ. ચાલો, ઓકે. यस सर. હા, હવે એની અંદર કઈ છે નહીં, તું બરાબર ધ્યાનથી જુએ તો. सर पड़ी गई समझ. પડવાનું મને. हाँ, ई स्क्वेर बाय 4 इंटू ई स्क्वेर -2 આવી ગયો ને. अच्छा, यस सर. हाँ, पेज नंबर 136 पर जो एग्जाम्पल 9, इंटीग्रेशन 1/3 to 1 x minus x cube to the power 1/3 and upon x raised to 4. Now in this sum, see, first of all what I do, I take x raised to 4 inside bracket, means I take x raised to 12 inside. When I take inside of power 1/3, you know, x raised to 12 and 1/3 power, if you write, then x raised to 4. यस सर. So therefore I write x minus x cube by x raised to 12 and whole raised to 1/3. This is what we write. After यस. then, see, separately you write x by x raised to 12 means 1 upon x raised to 11. Then minus x cube by x raised to 12 means 1 upon x raised to 9, whole to the power 1/3. Obviously, now I take 1 by x raised to 9 outside. है ने? यस एक्चुअली सर. શરૂઆતમાં જે કરી શક્યા હોતે, પણ મેં આવું વિચાર્યું. ચાલો, 1 by x raised to 9 outside, therefore its power 1/3 means 1 by x cube outside. And in the bracket remain 1 by x square minus 1. પહેલા વિચાર, 1 by x raised to 9 common કરીશું તો બ્રેકેટમાં 1 by x square minus 1 આવશે. બરાબર? हाँ. રેઝ ટુ પાવર 1/3. હવે બહાર જે આપણે 1 by x raised to 9 કરે તેનો પાવર પાછો 1/3 તો ખરો જ. यस सर. એટલે હા, એટલે 1 by x cube થયું. Now very simple. હા, clear? यस सर. Now 1 by x square minus 1, suppose t value. Suppose t. So derivative of 1 by x square is x to the power -2, and derivative is minus 2x raised to -3 dx equal to dt. In other words, it is minus 2 by x cube, or 1 by x cube dx is minus half dt. Correct? यस Check सर. करी ले. And now I change in limit. You know, x, when I take 1/3, put 1/3 in x value. So 1/3 square means 1 by 9. That is 9 by 1, 1 by x square. 9 minus 1 is 8. Therefore, t value 8. Clear? यस सर. Then x is 1. So 1 minus 1, 0 thi jase, t 0. So your limit now 8 to 0. 1/3 then 8 and 1 then 0. So it is integration from 8 to 0 on next page. And t raised to 1/3 for 1 by x square minus 1, you know, we suppose t is, therefore t raised to 1/3. And what 1 by x cube dx is minus half माइनस dt. dt. Now because of there is negative sign, we interchange limit. Half take out, integration 0 to 8 and t raised to 1/3 dt. Now it's very simple. T raised to 1/3, that integral is t raised to 1/3 plus 1, means t raised to 4 by 3 upon 4 by 3, and under limit 0 to 8.
Now denominator 4 by 3 take out, means 3 by 8 outside term. Yes, sir. Barabar? And now in bracket, we put upper limit first 8. So 8 raised to 4 by 3 and minus T0. So 8 raised to 4 by 3 means 2 cube raised to 4 by 3. 2 cube no 3 power cut થઈ જશે. 2 raised to 4 is 16. 16 into outside 3 by 8, therefore 3 into 2, that is 6. 6. Bolo, Yes, clear? sir. Clear. Now number 10. Now number 10. In sum number 10, if fx is integration 0 to x t sin t dt, then f dash x is blank. Integration limit 0 to x t sin t dt. You know t sin t, that means what? Product term. And therefore we use by parts rule. Yes, sir. So we write t as it is, integrate sin t, that is minus cos t, the t into minus cos t, and in between limit 0 to x. Then minus integration 0 to x, derivative of t1, and integration sin t minus cos t dt. Minus cost. Now we put t value is x, upper limit in first term. So it is minus x cos x. And then we put t0, obviously next term 0. 0 into cos 0, that is 0. So minus Yes. x cos x is the value of first bracket. Now in second term, minus outside take and minus minus plus. Integration 0 to x cos x dx. What integration of cos x? Like a sin x, 90. because derivative of sin x is cos x. So integration cos t is sin t, and between limit 0 to x. So we see fx equal to minus x cos x first term, and in second term what? Sin x. Now we derivate. We find f dash x. What is f dash x? So we use Derivative of our derivative rule. Product rule we write first, minus x as it is, cos x derivative minus sin x, then minus cos x as it is, derivative of x1. And for last term, sin x derivative cos x. So cos x. cos x cancel, and we get X. answer x sin x. Yes, sir. હવે મેં આજની પીડીએફ મોકલી, તેમાં જવું પડશે, અને એ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સમ મોર સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોપર્ટી. અહીંયા એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ તમારી. જે Yes, sir. એક્સરસાઇઝ ચાલતી હતી એના 10 સમ કમ્પ્લીટ. 7.10 હતી. બધા સમ પૂરા થયા. હવે ત્યારે નેક્સ્ટ પીડીએફ એટલે આજની પીડીએફમાં નજર કરવી પડશે. એમાં મેં 148 પેજ સુધી લીધા છે. પછી એક્સરસાઇઝ 7.11 થી નવી પીડીએફ બનાવું. આજનું વર્ક એટલું બધું અગત્યનું છે ને, આ છોકરાઓ બધા એબસન્ટ છે. એ સમજ નહીં પડે એવું કરે છે. કયા કારણથી સર એબસન્ટ? પંકજે ફોન રિસીવ કરેલો વચ્ચે, પર હેલો કહીને મૂકી દીધો. મેં આમાં મેસેજ બી મોકલ્યો તો બી કઈ રિસ્પોન્સ નથી. હવે કેવી રીતે એ લોકોને હેન્ડલિંગ કરવા તે સમજવી પડે. જે મારી પાસે પાછું છે ને બધું જુદું જુદું છે આજે. જોઈન્ટ ફોર્મેટ્સ મેં આપણા ગ્રુપમાં બી મૂક્યું છે. પેલા બેને બી મોકલ્યું છે. તો પછી હવે એને જોઈન્ટ થવું જોઈએ કે નહીં બધાએ. ચાલો નહીં આવ્યા તેનું જશે, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. યસ સર. આ તો કઈ નવું નવું જ પડી જાય છે. નવો મોબાઈલ છે બીજાનો. મારું
જુદું જુદું આવે. સમ મોર સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોપર્ટી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. yes sir, મળી ગયું ને પેજ તો. yes sir, First property, integration 0 to a fx dx. 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. એટલે શું કરવાનું છે સમજજો બરાબર. ફંક્શન તમારું તેનું તે જ રહે, પણ વેરિયેબલ એક્સ ને ખસેડીને શું લખવાનું છે? વેરિયેબલ a માઇનસ એક્સ. minus x. અપર લિમિટ દેખાય છે ને એ Yes, that sir. upper limit minus x કરીને ફંક્શન બનાવો તો બી એની ઇન્ટિગ્રેશન વેલ્યુ સેમ આવે, એવું આ રૂલ્સ છે. બહુ યુઝ થવાનો છે આનો. 0 ટુ a fx dx બરાબર 0 ટુ a જ, પણ ફંક્શનમાં વેરિયેબલ બદલાઈ જાય f of a minus x dx. ક્લિયર? બરાબર. આ રૂલ્સ પહેલા ધ્યાનથી સમજી લે, યાદ રાખવાનો છે આપણે. Yes, integration 0 to a f of x dx. So we write integration 0 to a f of એટલે bracket a minus x dx. dx માં કઈ પરિવર્તન? d of x minus a minus x એવું નથી કરવાનું. dx તો સિમ્બોલ છે. that integration with respect to what? હા, dx indicate yes sir, integration with respect to x એમ. તો અહીંયા 0 ટુ એ fx dx તો ફંક્શનને પકડી લેવાનું. જ્યાં ફંક્શનમાં જ્યાં જ્યાં x હોય એ બધા જ x ને શું ડિસ્ટર્બન્સ કરવાનું? x ને બદલે રિપ્લેસ કરવાનું a minus. માઇનસ એક્સ. હા, તો વેલ્યુ નહીં ચેન્જ થાય. જો એની પ્રૂફ બી મેં સમજાવી છે, બહુ સરળતાથી સમજ પડે. let in integration 0 to a f of a minus x dx we put a minus x equal to t. It means on right hand side જે છે ને આપણી પાસે 0 to a f of Yes, a minus x dx. So there we put a minus x equal to t. T. Now a minus x t. So what derivative? We get derivative minus minus dx dx. equal to dt. થશે? Yes હવે sir, change in limit. Limit of x 0 to a given, and I want limit of t. To put x 0, so t value is a, check. a And when I put t x is a, so t value a is minus a means 0. તો 0 to a ટ્રાન્સફર નાવ a to 0. જો લિમિટ મૂકતી વખતે બહુ કાળજી રાખવાની. જ્યાં 0 હતો ત્યાં એ થવો જોઈએ ને જ્યાં એ છે ત્યાં 0 એ પ્રમાણે લખવાનું. એટલે 0 to a 0 to a ના લખાઈ જાય. સમજ પડે છે ને? yes sir, હા, 0 to a એને આપેલું છે, આપણે લખવાનું છે a to 0. અચ્છા, what we supposing for a minus x t? તો we write f of t and what dx minus dt. Now because of minus sign we interchange limit of integration, that is 0 to a now ft yes, dt એટલે પ્લસ થઈ ગયું. અને you know integration ft dt under limit or integration fx dx under limit one and the same. આ પ્રોપર્ટી આપણે ડિસ્કસ કરી ગયેલા yes શરૂઆતમાં sir, કે in definite integration there is no importance of variable. means t ને બદલે x લખી દઉં કે x ને બદલે t તો ફરક નહીં પડે એ હિસાબે. બોલો, સમજાયું બરાબર? yes sir. તો જો સર ઇક્વલ આ ખાલી સમ તરીકે આવી શકે બે 3 માર્કમાં એમ? એ સમ હવે હવે જ પછી આવશે ને. આની એપ્લિકેશનના સમ છે બધા. આ જે રિઝલ્ટ છે તે એટલે આ પ્રૂવડ હે એમ કરીને નહીં આવે? ના 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 એવા નહીં આવે. એ Okay, તમને આ મેથડ હું એટલા માટે બતાવું કે સમ જ્યારે આવે ને ત્યારે ઘણા સમ આ ટાઈપ ના હોય તો તમે આવું yes, સપોઝિશન કરીને સીધું કરી શકો. એટલે તમને આઈડિયા મળે આમાંથી. આ આવશે yes, એવું નહીં. કારણ કે શું છે કે થિયરી તો પૂછતા જ નથી, પૂછવાનું અંદર રિઝલ્ટ નથી. હવે તો બધા સમ જ પૂછે છે, એટલા માટે હું ના પાડું. બાકી કરવું તો જોઈએ જ બધું. હવે નંબર 2 પર આવો. ઇન્ટિગ્રેશન ફ્રોમ a to b fx dx. તો that is integration a to b f of a plus b minus x dx. બોલો, બિલકુલ એના જેવું જ છે. yes આમાં sir, શું કરવાનું છે? લોઅર લિમિટ પ્લસ અપર લિમિટ માઇનસ એક્સ એમ થયું. a બરાબર plus, સમજાય છે? yes sir. પેલામાં બી એવું જ છે, પણ 0 પ્લસ એ કરો ને તો એ જ તો આવે, એ એટલે એ માઇનસ એક્સ. એટલે હવે તને સમજ પડવી જોઈએ કે નંબર 1 ઇઝ પર્ટિક્યુલર કેસ ઓફ નંબર 2. મતલબ નંબર 2 ઇઝ જનરલ કેસ. yes sir,
હા, એટલે બંને વન એન્ડ ધ સેમ જ છે, પણ પેલામાં 0 હતો, અહીંયા E2B છે, પેલામાં 0 to A હતો, આટલો ફરક છે, બાકી બંને સેમ જ છે. ચાલો, તો આ વારા પહેલો રૂલ્સ વાળા બહુ સમ આવવાના છે, એટલે મેં તને બતાવ્યું. હવે નંબર 2, એની પ્રૂફ પણ ઇઝી, આવી જ રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. ઓન RHS વી પુટ a પ્લસ b માઇનસ એક્સ બરાબર t, કેમ કે એફ ઓફ સિંગલ લેટર જ જોઈએ છે ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર, એટલે એના બરાબર સિંગલ લેટર t સપોઝ કરો. એટલે when I take a plus b minus x equal to t, then derivative gives minus dx equal to માઇનસ dt, ડીએક્સ. अथवा dx is minus dt. And what about change in limit? So when we put x a cancel and t value b. And when I put x b cancel and t equal to a. So a to b change now b to a. Right? યસ સર. हाँ, and f of t minus dt, કેમ કે dx બરાબર minus dt. પેજ 137 પર જુઓ. Integration 0 યસ. a to b f of a plus b minus x dx is integration a to b f of t and dx is minus dt. So your change in limit a to b ft dt. But you know integration ft dt or integration fx dx one and the same indefinite integration. યસ એટલે સર. એ પ્રમાણે ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx સીધું આવી ગયું. અને મેં મેન્શન કર્યું કે પ્રોપર્ટી 1 ઇઝ સ્પેશિયલ કેસ ઓફ પ્રોપર્ટી 2. જનરલ કેસ છે આ પ્રોપર્ટી. આ બે પ્રોપર્ટી ઉપર આધારિત કયા ટાઈપના સમ પૂછાય એ મેં હવે નીચે લખ્યું. જો એક્ઝામ્પલ ઇવેલ્યુએટ, આમ 3 એક્ઝામ્પલ મેં વેરાયટીઝ વાળા મૂક્યા છે, બરાબર સમજજે. એ પ્રકારના સમો આવે. આખી એક્સરસાઇઝ આના પછી એના ઉપર જ છે. તો ફર્સ્ટ સમ આપણે યસ સમજીએ. સર. હા, ફર્સ્ટ સમ જો કેટલો ઈઝી બની જાય, દેખાય કેટલો ડેન્જર છે જુઓ. 0 to pi by 2 nth root of sin x upon nth root of sin x plus nth root of cos x dx. હવે nth root માં n ની જગ્યાએ કોઈ પણ હોય, ક્યુબ રૂટ આપે, ફોર્થ રૂટ, ફિફ્થ રૂટ આપે, સેવન્થ રૂટ આપે, તો પણ એ જ ટેકનિકથી ગણવાનું છે. જુઓ નંબર 1 નું સોલ્યુશન જોઈ લઈએ, પછી સેકન્ડ ને થર્ડ લઈએ, બરાબર. ચાલો, નંબર 1 નું સોલ્યુશનમાં મેં પહેલા એને સપોઝ કર્યો, લેટ I ઇક્વલ ટુ 0 to pi by 2 nth root of sin x upon nth root of sin x plus nth root of cos x dx. Call it number 1. Now I apply property 1, 0 to a fx dx વાળી ખબર પડે છે ને, 0 to a f યસ of સર. a minus x. તો એ પ્રમાણે લખો તો 0 to pi by 2 નું 0 to pi by 2 જ રહેશે ઇન્ટિગ્રેશન. અને ફંક્શન x, in function x we replace by a minus x, એટલે what here a means pi by 2, એટલે pi by 2 minus x. તો જો nth root of sine of pi by 2 minus x in denominator nth root of sine of pi by 2 minus x plus nth root of cos of pi by 2 minus x. Everywhere, wherever you see x, you replace this. अंडरस्टैंड? યસ. क्लियर થયું ને? યસ સર. हाँ, अब नेक्स्ट में क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 एन रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स फॉर्मूला है, एन रूट कॉस કોસ एक्स, એક્સ. डिनोमिनेटर में एन रूट कॉस एक्स प्लस एन रूट साइन एक्स डीएक्स हो गया बराबर. યસ अब સર. दोनों नंबर 1 और इसको बोलो नंबर 2, ये दोनों को कंपेयर करके देखो डिनोमिनेटर में क्या है. सेम टर्म, સેમી હશે. सेम टर्म है ना. યસ સર. अगर हम सम कर दिया जाए, कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो न्यूमरेटर का भी सम हो जाएगा હા. और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा. देखो बहुत आसान है. યસ સર. That's why I add. By adding 1 and 2 we get left side I, and in number 2 also I, तो I plus I become 2I, है ना. હા. हाँ, अब राइट हैंड साइड में हम सम करते हैं, अंडर सेम लिमिट है तो सम डायरेक्ट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं एन रूट कॉस एक्स प्लस एन रूट साइन एक्स. अब न्यूमरेटर में सम करोगे तो वो एन रूट कॉस एक्स प्लस एन रूट साइन एक्स ही होगा.
तो अपर लोअर सेम टर्म है, सेम फैक्टर है, तो दोनों कट हो जाएगा तो वन आ जाएगा कि नहीं। यस सर। तो ये कितना आसान हो गया, देखो इंटीग्रेशन वन का मतलब एक्स, जीरो से पाई बाई टू का मतलब पाई बाई टू, एंड टू आई बराबर पाई बाई टू, तो आई का मतलब पाई बाई फोर। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा तो पाई बाई फोर ही आंसर आएगा। देख लिया यस बराबर। सर, अब एकदम इजी। हाँ, अब बिल्कुल उसी टाइप का सम अगर आप सोचो तो ये साइन एंड कॉस आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट है ना। तो हाँ। उसी टाइप का टेन एंड कॉट भी है। रूट यस सर। nth रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन nth रूट ऑफ टेन एक्स प्लस nth रूट ऑफ कॉट एक्स लिख दिया जाए इसके अलावा, एंड जीरो से पाई बाई टू लिखे तो उसकी भी वैल्यू पाई बाई फोर आएगी। एंड कॉसेक यस एंड सर। सेक भी आप पहचानते हैं, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स। तो वैसे उधर भी यहाँ भी लिख सकते हैं कि एंड रूट ऑफ कॉसेक एक्स अपॉन एंड रूट ऑफ कॉसेक एक्स प्लस एंड रूट ऑफ सेक एक्स डी एक्स, एंड अंडर लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, उसका भी जब आंसर बिल्कुल इसी टाइप का स्टेप लेके पाई बाई फोर ही आएगा। तो हो गया ना बराबर इजी पॉइंट। यस सर। अब सेकंड सम को चेक करते हैं। देखो जीरो से वन, एक्स इंटू वन माइनस एक्स रेस टू थ्री बाई टू डी एक्स, ये सेकंड सम दिया है। यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, इस टाइप का सम का जो इंटीग्रेशन सोचने पड़ोगे तो वन माइनस एक्स का पावर फ्रैक्शन होगा तो हम एक्सपांड नहीं कर सकते। यस सर। पावर, हाँ, पावर जो इंटीजर होगा तभी आप उसका एक्सपांशन सोच सकते हैं। बराबर है ना, आपको पता है। यस सर। वन माइनस एक्स का होल क्यूब है तो हम कर सकते हैं एक्सपांशन, लेकिन वन माइनस एक्स का थ्री बाई टू है तो क्या कर सकोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये रूल यहाँ यूजफुल है। देखो मैंने बोला वही, यहाँ लिमिट जीरो से वन है तो मैं एक्स की जगह क्या लिखूंगा, ये तो याद वन रहना माइनस। चाहिए, वन माइनस एक्स, एक्स माइनस वन नहीं बोलना, ये ध्यान रखना। ए यस सर। माइनस एक्स मतलब यहाँ वन माइनस एक्स। तो देखो मैंने लिख दिया, एक्स की जगह वन माइनस एक्स पहला ब्रैकेट आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस करके एक्स की जगह ब्रैकेट बना के वन माइनस एक्स लिखा, बराबर देख लो, पावर थ्री बाई टू जो है, बाकी यस। सब वैसे का वैसा। अब क्या हुआ, वन माइनस एक्स, और जो अंदर वाली जो टर्म थी वहां वन वन कट हो गया, प्लस एक्स का पावर थ्री बाई टू। अब इजी बन गया, कैसे इजी बन गया कि एक्स रेस टू थ्री बाई टू सिंगल नंबर हो गया ना, सिंगल लेटर आ गया। तो अब हम प्रोडक्ट करके उसके साथ क्या बोलेंगे, वन इंटू एक्स रेस टू थ्री बाई टू का मतलब एक्स रेस टू थ्री बाई टू, माइनस एक्स के साथ एक्स रेस टू थ्री बाई टू का प्रोडक्ट करोगे तो एक्स रेस टू फाइव बाई टू। 5/2। अब दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। आपको पता है यस एक्स सर। रेस टू थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा लेना चाहिए, तो एक्स रेस टू फाइव बाई टू अपन फाइव बाई टू होगा। डिनोमिनेटर में फाइव बाई टू का मतलब टू बाई फाइव हुआ, है ना। टू यस बाई सर। फाइव एक्स रेस टू फाइव बाई टू, फिर माइनस करके पावर एक्स रेस टू सेवन फाइव बाई टू है, तो इसमें भी एक ऐड कर दो वन, तो एक्स का पावर सेवन बाई टू वन अपन बाई सेवन टू। बाई टू मतलब टू बाई सेवन हो जाएगा। एंड बिटवीन लिमिट जीरो से वन लिख देते हैं। अगर हम वन लिखे तो वन का कोई भी पावर वन होगा तो टू बाई फाइव माइनस टू बाई सेवन ही आएगा, एंड माइनस करके हम जीरो लिखेंगे तो दोनों जीरो हो जाता है। हाँ। अब सिंप्लीफाई करें तो थर्टी फाइव एलसीएम हो गया, टू को बाहर निकाल दो तो सेवन माइनस फाइव हो जाएगा ना अंदर, यस सर। सेवन माइनस फाइव का मतलब टू, और बाहर वाला टू से मिला दो तो टू टू ज़ा फोर, तो इसका आंसर फोर बाई थर्टी फाइव। अगर ये ट्रिक यस। नहीं जानते आप तो ये बहुत मुश्किल सम दिख रहा है कि कैसे करें कैसे करें, ऐसा ही सोच। चालू ही नहीं कर पाते। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ रुक जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वह बच्चे लोग नहीं है, तीन बच्चे नहीं है आज, चार में से अकेला ही हूँ तीन मैं। हैं। अकेला ही हूँ मैं। हाँ वही तो प्रॉब्लम है। ये तीसरा नंबर भी देख लेते हैं, उसने दिया है ना, मैंने बोला था इंटीग्रेशन पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू, वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा है। वन यस। अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, उसको नंबर वन बोल देते हैं हम।
बराबर। यस सर। फिर इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3, 1/1 प्लस 10 ऑफ पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। देखो वो एप्लीकेशन सेकंड प्रॉपर्टी वाला, इंटीग्रेशन ए हाँ। टू बी एफ एक्स डी एक्स था ना। तो उसको हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो बिल्कुल उसने यही किया कि वो 10x है तो 10x के जगह 10 ऑफ पाई बाई फाइव 6 बाई प्लस पाई बाई 3 माइनस माइनस। एक्स। बट पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3 का तो सम पाई बाई 2 होता है, आपको पता है। यस सर। तो 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो कॉट गया, है। उसका कॉट एक्स हो गया। अब अगर नंबर वन इसके साथ देखोगे तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि कॉट में से कैसे 10 कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कॉट एक्स की जगह 1/10x लिख दो। आप सिंप्लीफाई करो तो 10x ऊपर जाएगा, नीचे 1 + 10x ही आएगा कि नहीं। यस सर। आप नंबर वन और ये नंबर टू दे दो और दोनों को कंपेयर करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों की इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो हम आसानी से इक्वल ऐड है। कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो ऊपर भी 1 + 10x ही आने वाला है, आप नजर करो बहुत ध्यान से। यस सर। नीचे भी 1 + 10x हो गया, तो मतलब 1 हुआ, है ना। यस सर। अच्छा, तो इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 dx का मतलब इंटीग्रेशन 1 dx का मतलब x। एक्स। तो ब्रैकेट में x पाई बाई 6 से पाई बाई 3, लेकिन लेफ्ट साइड में रिमेंबर i प्लस आई किया है हमने, तो 2i लिखना पड़ेगा, वाई। अब i नहीं चलेगा। तो 2i बराबर पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 हुआ, इसका डिफरेंस पाई बाई 6, सो i विल बी पाई बाई 12। यस सर। कितना आसान है देखो। तो यस ये सर। दो प्रॉपर्टी का यूज था। इसी टाइप का सम अपनी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वो बाद में आएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख के बताया कि भाई प्रॉपर्टी सीखो तो उसके ऊपर आधारित दो तीन सम भी हो जाए तो आपको दिमाग में फिट हो जाए कि इसको ऐसी तरह से करना है। अब तीसरी प्रॉपर्टी आ रही है, वो प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 142 पे है। जरा आप पढ़ लो, बराबर ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं बाद में समझाता हूँ। देख ले हाँ, पहले बराबर ध्यान से। यस सर, आ गया। आ रहा है समझ में। यस सर। बहुत आसान है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जरा सुनो। ये जो प्रॉपर्टी है ना, 0 से 2a f(x) dx है, तो मैंने उसको स्प्लिट किया 2a को, बराबर से 0 से 2a को, 0 से a, और बाद में a से 2a ऐसा हो सकता है। तो उसकी जो आंसर है प्रॉपर्टी, जरा पहले स्टेटमेंट देखें, 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx एंड प्लस 0 to a f(2a - x) dx, ऐसा रिजल्ट है।
दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से a है राइट हैंड साइड पे। एक में एफ एक्स लिखा है ने दूसरे में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिखा है। तो ये किस तरह से होता है उसकी डिस्कशन करें। तो एस जीरो लेस देन ए लेस देन 2a, मतलब कि बिटवीन 0 के 2a के बीच में है। वी हैव 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। ये भी प्रॉपर्टी मैंने बताई है आगे कि यस अगर सर। हाँ इंटरवल ए बी के बीच में कहीं पे भी सी हो तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। उसकी प्रूफ भी बताई थी, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरह से ये स्प्लिट किया। 0 to 2a है और ए बिटवीन ए 0 से 2a है, तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से 2a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसको हम नंबर 1 बता के थे। अब अगर कंपेयर करोगे अपनी गिवन प्रॉपर्टी से तो वहां फर्स्ट टर्म तो आ ही गया, देख लो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है ना। यस सर। अब दूसरी टर्म उसके साथ मैच नहीं देख रही है अभी, तो वो मैच करना है हमको, बस इतना ही है। तो मैं क्या करूंगा कि फंक्शन को देखूंगा, यहाँ एफ के साथ एक्स वाला वेरिएबल एक्स है और उधर 2a माइनस एक्स है। तो एक्स की जगह पे सपोज कर दूं बिल्कुल 2a माइनस एक्स जैसा। 2a माइनस एक्स नहीं लिखूंगा लेकिन 2a माइनस कोई अदर लेटर टी लिख दूंगा। देखो मैंने स्टार्ट किया। फॉर इंटीग्रेशन ए टू 2a एफ एक्स डी एक्स लेट अस पुट x equal to 2a minus t. So what? By derivative dx equal to minus dt. And when I change in limit, when you know limit of x is a, what will be limit of t? By putting x a, t value should be 2a minus a, so a. ए। And similarly, when I substitute x is 2a limit, then t value you get 2a minus 2a, that is 0. So now your integration a to a fx dx becomes a to 0 because when I have x a t a, so that is a. But when x to a, we find t 0. So therefore integration a to 0. And f of x के जगह पे 2a minus t हमने सब्स्टिट्यूट किया है, x बराबर 2a यस minus सर। t एंड डी एक्स की जगह माइनस डी टी। अब आपको पता है कि माइनस साइन आ गई है माइनस डी टी, तो लिमिट। हम बोलेंगे हाँ इंटरचेंज कर लेंगे लिमिट 0 से ए एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी हो गया। अब आपको पता ही है कि वेरिएबल को चाहे टी लिखो या एक्स लिखो सेम। डेफिनेट में तो सेम ही होता है, तो हमने लिख दिया 0 से ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो हो गया ना अपना वो रिजल्ट, तो यस उसको हम सर। नंबर 2 बोलते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा कि वन में वन और टू कंपेयर करें और ए टू 2a एफ एक्स डी एक्स की जगह 0 से ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये रिजल्ट हो गया। बहुत आसान है ना रिजल्ट। यस सर। अब ये रिजल्ट की दो कॉरोलरी होती है, उसको हम बोलेंगे डिडक्शन यहाँ। तो वो क्या है, अगर मान लो कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स तो आपको दिया गया है फंक्शन, इसमें मैं कैलकुलेट करूंगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर मैंने देखा कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एंड एफ एक्स सेम है तो वो डबल हो जाएगा कि नहीं। तो आई ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखा जाएगा कि नहीं। हाँ। हाँ, अगर वो ऑपोजिट हो तो कैंसल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। दूसरा क्या, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स में ढूंढूं और निकालूं और मुझको माइनस एफ एक्स मिल जाए तो वो कट हो जाएगा कि नहीं एक दूसरे के साथ। यस सर। हाँ, तो जीरो आ जाएगा। दूसरा क्या है, तो देखो मैंने दो नोट लिख दी है पेज नंबर 143 पे। क्या लिखा है नंबर 1 में देखो, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मैंने कैलकुलेट किया और मुझको मिला माइनस एफ एक्स, तो ये ऑपोजिट हो गया कि नहीं। यस सर। तो अब क्या होगा, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो वो जो राइट हैंड साइड वाला जो थियोरिकल पोर्शन में आया है प्रॉपर्टी में, तो वो दोनों राइट हैंड साइड वाला टर्म कैंसल हो जाने वाला है, क्योंकि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं और कट हो जाएगा। समझ में आया बराबर। यस सर। नहीं समझ में आया तो मैं बोलूं वैसा, देखो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो
तो प्रॉपर्टी को देखो, थर्ड प्रॉपर्टी है उसको मैंने अभी अभी जो कंप्लीट किया वो प्रॉपर्टी को फिर से देखो, स्टेटमेंट देखो खास करके। लेफ्ट हैंड साइड तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स ही है कि नहीं? यस सर। तो उसके बराबर क्या होगा अगर वो ऑपोजिट होगा तो कट होगा और जीरो बनाएगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो हम याद रखेंगे कि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ऐसा होगा। अब दूसरा नंबर, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स दोनों इक्वल है, सेम है, तो ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। यस अब सर। हाँ, अब नोट पढ़ो तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि लेफ्ट साइड में मैंने 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स क्यों लिखा। इसकी बहुत यूज करना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पढ़ो बराबर ध्यान से। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स अगर दिया हो तो आपको क्या चेक करना चाहिए? फंक्शन में x की जगह 2a माइनस एक्स लिख के एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना है। अगर वो माइनस एफ एक्स आ जाए तो वो वैल्यू जीरो बोली जाएगी, 0। अगर वो सेम आ गई तो डबल बोला जाएगा, 0 से एफ एक्स। अब बराबर ध्यान में आया? यस सर। अब मैं उसी टाइप का दो सम दे के बताता हूं किस तरह से सम आता है। देखो, इवैल्यूएट करके मैंने एक एग्जांपल दिया, 0 से 2 पाई साइन क्यूब एक्स बाई कॉस रेस टू 5x dx। देख लिया बराबर सम? यस सर। हाँ, अब मेरा फंक्शन एफ एक्स है साइन क्यूब एक्स बाई कॉस रेस टू 5x। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जैसे वहां थियोरिकल डिस्कशन में 2a था, यहां 2 पाई है, वहां हमने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को चेक करने को बोला, यहाँ एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स चेक करेंगे। या पता चला कि नहीं बराबर? यस सर। हाँ, तो क्या होगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ऊपर साइन क्यूब ऑफ 2 पाई माइनस एक्स होगा, नीचे कॉस रेस टू 5 2 पाई माइनस एक्स होगा। अब आपको पता है 2 पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई माइनस थीटा कहाँ आता है? 4। फोर्थ। अभी देखो साइन वहां कैसा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑल एस टी सी को याद करो, तो नेगेटिव है, नेगेटिव। एंड कॉस पॉजिटिव है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, है ना? और उसका यस सर। पावर क्यूब है, वो भी ऑड है, तो माइनस साइन क्यूब एक्स होगा। ओके। हाँ। अब डिनोमिनेटर की बात करें, cos 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही है, तो वो cos एक्स ही आएगा। अब चाहे ऑड पावर हो या इवन, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, cos यस फाइव सर। एक्स ही रहेगा यहाँ जो है वो। तो क्या हुआ देखो, माइनस एफ एक्स हो गया क्या नहीं? हाँ, तो तो 0 एफ आ ऑफ, रहे हैं। हाँ, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हुआ। इसका मतलब कि जो हमने दिया है फंक्शन 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, तो उसकी वैल्यू जीरो। दैट मीन्स के 0 to 2 पाई साइन क्यूब एक्स बाई कॉस 5x dx इक्वल टू 0। उसको कैलकुलेट करने का ही नहीं, सीधा जवाब आ जाता है। यस सर। लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए, किस तरह से करना है, कैसे चेक करना है, वो तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। अब देखो मैंने दूसरा सम कैसा लिया, पेज 144 पे। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई है, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वेर एक्स डी एक्स है, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वेर एक्स डी एक्स है। अब क्या होगा, यहां भी मैं तो वही चेक करूंगा जो अपना 0 to 2a की जगह क्या है, वहां यहाँ 2 पाई नहीं है, पाई है। भाई। देखो पाई है, तो हम एफ ऑफ पाई माइनस एक्स चेक करेंगे। अब समझ में आया बराबर? यस सर। तो एफ एक्स बराबर फंक्शन लिख देते हैं पहले, साइन एक्स कॉस स्क्वेर एक्स। अब मैंने चेक करना शुरू किया एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। चलो चेक करें तो साइन पाई माइनस एक्स की कीमत क्या आएगी? पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। हाँ, सेकंड में। साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
अब कॉस की चेक करो। कॉस पाई माइनस एक्स कैसी वैल्यू है? नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। माइनस कॉस एक्स, और उसका स्क्वायर, यस उसका सर, पावर तो वो स्क्वायर है पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अगर वहां पावर क्यूब होता तो नेगेटिव आ जाता। यस सर। तभी हम बोलते हैं माइनस एफ एक्स और आंसर जीरो। पता चल गया बराबर। यस सर। यहाँ क्या हुआ, स्क्वायर होने से पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ माइनस एफ एक्स नहीं लिख सकेंगे हम, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स लिखेंगे। हाँ, तो इसीलिए बराबर। जो जो अपना है ना, जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर ट्वाइस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स वाली फॉर्मूला आएगी। यस सर। तो यहाँ जीरो से पाई है, मतलब टू ए की जगह पाई है, तो ए की जगह पाई बाई टू आएगा, वो भी याद रखो। हाँ। हाँ, ये कैलकुलेट अपने दिमाग से कर लेना चाहिए कि यहाँ जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स से डबल है, तो यहाँ टू ए था तो मैं जीरो से ए लिखता हूँ। तो पाई है, तो हमको पाई बाई टू क्यों लिखना पड़ेगा कि टू ए बराबर पाई, तो इसमें से ए को निकालो तो ए बराबर पाई बाई टू, ये ऐसा पाई बाई कैलकुलेट। टू। तो जीरो से पाई बाई टू एफ एक्स डी एक्स होगा क्या नहीं? यस सर। अच्छा, अब देखो, जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ, बाहर डबल ट्वाइस भी आ गया। अब ये तो बहुत आसान इंटीग्रेशन है, क्योंकि आपको पता है अगर हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव करें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आता है ना। तो हाँ। कॉस एक्स की जगह टी सपोज करना चाहिए, हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो बगल में जो साइन एक्स पड़ा है तो उसका निकाल आ जाएगा ना, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी यस करके। सर। अच्छा, अब लिमिट को चेंज करें। देखो, लिमिट यही नहीं रहेगी, लिमिट चेंज होगा। ये आप सब बच्चे भूल जाते हैं। जब सपोजिशन करते हो आप लोग टी के फॉर्म में, तो लिमिट भी जो दी गई है एक्स के फॉर्म में से, तो उसमें से टी के फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये बार बार याद रखना। तो देखो, यस मैंने, सर। हाँ, एक्स की जगह जीरो लिखता हूँ पहला। तो मुझको क्या मिलेगा, टी बराबर कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन है। वन। अगर एक्स पाई बाई टू लिखा जाए तो टी बराबर कॉस पाई बाई टू मतलब जीरो। तो अब यस। लिमिट चेंज जीरो से पाई बाई टू की जगह वन से जीरो हो जाएगा। तो अपना जो सम है वो कंटिन्यू करे तो लेफ्ट साइड वाला तो जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स ही लिखा जाएगा, और राइट हाँ, हैंड में जो ट्वाइस जीरो से पाई बाई टू था उसकी जगह वन से जीरो। वन से कॉस एक्स की जगह टी सपोज किया है तो टी स्क्वेयर होगा, कॉस स्क्वेयर का मतलब, एंड साइन एक्स डी एक्स का मतलब माइनस डी टी। नाइन। हो गया बराबर, ध्यान से। यस सर। अब माइनस निकाल देते हैं, कहाँ कैसे करके वो इंटरचेंज कर लेते हैं लिमिट को। तो माइनस टू मैंने पहले लिखा था बाहर, बाद में मैंने इंटरचेंज कर दिया लिमिट, तो बाहर माइनस प्लस हो गया, तो प्लस टू मेंशन किया, जीरो से वन टी स्क्वेयर डी टी। अब टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री है ना? हाँ। हाँ, अब लिमिट लिखे तो अपर लिमिट वन लिखे तो वन थर्ड आएगा, जीरो लिखने से तो कोई फायदा नहीं है, जीरो ही आएगा। तो टू टू इंटू बाई। वन थर्ड ऐसा आया, मतलब कि आंसर टू बाई थ्री। टू बाई। यस सर। तो कितना आसान, कितना इजी है, देख लो बराबर। मगज यस में सर। ये रहा, मैंने दोनों एक एक टाइप का सम ले लिया। अब आई चौथी प्रॉपर्टी, ये 145 पेज पे आ रही है। वो प्रॉपर्टी क्या है वो भी देखो। देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। लिमिट अपोजिट है, माइनस ए टू ए, देखो खास नोट करो, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो उसका आंसर दो टाइप का आंसर होता है। अगर अपना फंक्शन इवन फंक्शन हुआ तो उसकी वैल्यू होगी डबल ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। एंड अगर अपना फंक्शन ऑड हो जाएगा अथवा होगा तब हम लिखेंगे इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू जीरो। अपोजिट लिमिट है माइनस ए से प्लस ए, ऐसा समझो, माइनस ए फिर बीच में जीरो और बाद में ए। समझे ना आप? यस सर। हाँ, अगर ये फंक्शन क्या होगा, अपोजिट मीन्स के ऑड होगा,
तो ये माइनस ए से जीरो और जीरो से ए की वैल्यू ही ऑपोजिट आ जाएगी, तो इसीलिए जीरो आ जाएगा। अगर वो इवन होगा तो क्या होगा, दोनों डबल हो जाएगा, इसलिए ट्वाइस जीरो टू एफ एक्स डी एक्स ऐसा कहना है। बोलो समझ में आया बराबर? फिर अब हम यस सर। प्रूफ शुरू करें। प्रूफ बहुत आसान है। प्रूफ इसीलिए बता रहा हूं कि आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, क्या तकलीफ है इसमें। कभी भी आप एग्जाम में भी रुक जाए कि भाई माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, इवन में जीरो लिखना है कि ऑड में जीरो लिखना है, ऐसा अगर कंफ्यूजन हो जाता है, कभी यह होता है एग्जाम में जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई कई फॉर्मूला में भी ऐसा होता है, तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आता हो ने तो 2 मिनट बिगड़ेगी, लेकिन आप सेट करके बता सकते हैं। इसीलिए मैं प्रूफ हर एक टाइम बताता हूं। तो यहां भी देख लो बराबर ध्यान से, ये जी माइनस ए और ए के बीच में जीरो है, वो तो आपको पता ही है। कोई भी दो ऑपोजिट नंबर ले लो, ऑपोजिट नंबर का मतलब मान लो कि 5 और -5 ले लिया, तो एग्जैक्टली मिडवे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो के यस राइट हैंड सर। साइड पे 5 आएगा, तो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे -5 आएगा। आपको ये पता है, नंबर नंबर लाइन को आप जानते हैं। तो माइनस ए एंड ए इज अ रियल नंबर और माइनस ए इट्स ऑपोजिट रियल नंबर, तो दोनों जीरो के ऑपोजिट साइड में होगा, ये तो पता ही है। एंड यस सर। जीरो एग्जैक्टली मिडवे होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एज माइनस ए लेस देन जीरो लेस देन ए, तो आई कैन राइट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स एज वॉट, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो जीरो। टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं। उसको हम नंबर यस। वन बोलेंगे। अब देखो ये दोनों में एक तो अपना आ गया राइट हैंड साइड में, देखो हमको चाहिए ट्वाइस जीरो टू एफ एक्स डी एक्स या तो जीरो, तो जीरो टू एफ एक्स डी एक्स वाले को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको पता है। पहले वाला टर्म जरा ऑकवर्ड आया, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, तो उसको ही हम डिस्टर्बेंस करेंगे। किस तरह से, तो जरा देखो, मैंने जी। माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स लेके वहां सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं एक्स बराबर -t। क्यों ऐसा किया, तभी वो ऑपोजिट लिमिट होगा ना, हमको जीरो से ए या तो ए टू जीरो चाहिए, यहां तो माइनस ए टू जीरो है। तो अगर मैं x बराबर -t लिखूं तो dx के वैल्यू क्या हो जाएगी, -dt, दूसरा कोई चेंज होगा नहीं, बराबर समझ में आना चाहिए। हाँ अब यस हुआ सर। अब हुआ लिमिट का चेंज। तो अब आप समझ सकते हैं कि x बराबर -a लिखूंगा तो t a आएगा, x अगर जीरो लिखूंगा तो t जीरो हो जाएगा। बोलो है कि नहीं बराबर? यस सर। तो इंटीग्रेशन -a टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, I can write integration from a to 0, f of minus t and dx की जगह -dt। अब f ऑफ माइनस टी को रहने दो, बाहर जो -dt वाली साइन आई माइनस, उसके हिसाब से ए जीरो को हम चेंज करेंगे कि नहीं, जीरो से। यस सर। हाँ, तो जीरो से ए एफ ऑफ -t dt। अब आपको पता होगा कि इवन फंक्शन किसको कहा जाता है, ऑड फंक्शन किसको कहा जाता है। अगर एफ ऑफ फंक्शन फॉर फंक्शन एफ ऑफ -x इज सेम एज एफ एक्स, मतलब कि इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, तो एफ को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। एंड एफ ऑफ -x की वैल्यू अगर -f ऑफ x हो जाए, तो हम फंक्शन को बोलेंगे ऑड फंक्शन। याद है आपको ये? यस सर। तो बिल्कुल उसका ही यहाँ यूज है। देखो जीरो से एफ ऑफ -t dt, मैं उसका डबल आंसर लिखने जा रहा हूं। पहला जब इवन हो तो उसकी वैल्यू जीरो से एफ ऑफ -t की जगह एफ टी लिख सकते हैं क्या नहीं, यस सर। तो एफ टी डी टी होगा। अगर वो एफ ऑड हो तो एफ ऑफ -t की जगह हम -ft लिख सकते हैं, इसीलिए -0 से ए एफ टी डी टी होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। ऑड के लिए ये आएगा, इवन के लिए ऊपर वाला आएगा। अब आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल टी
के बजाय मैं वेरिएबल एक्स लिख दूं तो कोई चेंज होता नहीं है, तो अब मैंने एक्स के फॉर्म में लिख दिया। वही इंटीग्रेशन माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स बराबर डबल ऑफ का क्या डबल आंसर आएगा, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स फॉर एक्स इवन एंड माइनस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स फॉर एक्स इज ऑड। है कि नहीं बराबर? यस सर। अब देखो इसको नंबर टू बोलते हैं हम, और पहला वाला नंबर के साथ उसका एडिंग करेंगे, मतलब कि वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या होता है बाय वन एंड टू, देखो वन वाला इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ो। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स था, बराबर है। उसमें लास्ट वाला टर्म हमने ऐसा ही एज इट इज रखा था, और पहला वाला टर्म माइनस ए टू जीरो का एफ एक्स डी एक्स का, ये दो आंसर आया है। आपको पता चल गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, पहले हम इवन की बात करें तो कौन सी वैल्यू लोगे इसमें से? माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकेंगे? जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ इवन है तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स आता है ना उसकी जगह पे। जरा रिस्पॉन्स दे यार, तरह यस नो बोलना चाहिए। सर एक्चुअली आपकी आवाज कट हो रही है एकदम, इसलिए। ऐसा हो रहा है तो कैसे कट होती है? मैं तो ठीक ठाक हूँ यहाँ पे। सर शायद नेट। हाँ, वो तो नेट का ही प्रॉब्लम होगा। अच्छा तो मैं, यस सर। हाँ सुनाई देगा अभी तो बराबर है। चलो, जब इवन यस इवन सर। की बात करें तो वो वैल्यू वहां से हम कौन सी वैल्यू लेंगे? जीरो से एफ एक्स डी एक्स उसी जगह पे रख देते हैं। देखो मैंने लिख के बताया है 146 में, पेज 146 पे। यस सर। तो इवन होगा तो वो पहली वाली वैल्यू आएगी। अगर वहां ऑड लेंगे तो वो वैल्यू माइनस जीरो टू एफ एक्स डी एक्स माइनस। लिखा जाएगी। पिछली वाली એટલે सेकंड टर्म तो सेम ही है। अब हुआ क्या, पहला इवन जब देखते हैं तो दोनों सेम आ गया तो डबल हो गया, है क्या हाँ। नहीं डबल? एन ई यस ऑड सर। वाला लिया तो दोनों ऑपोजिट आ गया तो वो कट हो गया, इसीलिए जीरो जीरो। आया। बस तो उसको याद रखना है आपको कि भाई माइनस ए टू ए, जब भी ये ऑपोजिट लिमिट आए और आपको इंटीग्रेशन करने को बोले तो क्या करना चाहिए? फंक्शन को चेक करना चाहिए, ये ऑड है या इवन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गिवन फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉर इवन, तो ये अपना ट्रिक नहीं चलेगा, तो कोई दूसरी ट्रिक से सोचना पड़ेगा, जैसा हम सपोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं वैसा है, समझे? यस सर। हाँ, लेकिन फर्स्ट चांस किसको देना चाहिए? ऑड और इवन। अगर वो ऑड हो गया तो फौरन आंसर जीरो लिख देंगे, अगर वो इवन हो गया तो ट्वाइस डबल। करके हाँ आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप बराबर ध्यान से देखो। इवेल्युएट करके एक फंक्शन लिया माइनस वन टू वन एक्स टू द पावर फोर साइन क्यूब एक्स बाई कॉट रेस टू सिक्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ फंक्शन देखें तो एक्स फोर साइन क्यूब बाई कॉट सिक्स। हम क्या चेक करने जा रहे हैं? ऑड और इवन। कैसे चेक करेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, अगर वो माइनस एफ एक्स आ गया तो ऑड बोलेंगे, और अगर हाँ वो सेम एफ एक्स आ गया तो इवन बोलेंगे। बस तो ये रूल आपको पता है। तो देखो मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो लेफ्ट साइड की जगह अब राइट साइड देखो, तो एक्स की जगह माइनस एक्स लिखने से माइनस एक्स टू द पावर फोर हुआ, फिर साइन क्यूब ऑफ माइनस एक्स हुआ, डिनोमिनेटर में कॉट रेस टू सिक्स ऑफ माइनस एक्स हो गया। क्या ध्यान में आ गया बराबर? यस सर। अब पावर फोर इवन है तो माइनस एक्स का फोर एक्स रेस टू फोर ही बोला जाएगा, समझिए आप। हाँ। अब देखो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है और उसका पावर भी क्यूब है, तो माइनस साइन क्यूब एक्स ही लिखा माइनस। जाएगा, यस सर। समझिए। अब कॉट ऑफ माइनस एक्स वो भी ऑड फंक्शन है तो माइनस कॉट एक्स लिखा जाएगा, लेकिन पावर इवन है सिक्स, पावर सिक्स। तो इसीलिए कॉट सिक्स एक्स होगा। अब देख लो बराबर ध्यान से, माइनस बाहर आएगा कि नहीं? और फंक्शन यस तो सर। वही है तो माइनस एफ एक्स हो गया। देखो एफ ऑफ हाँ। माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, मतलब के फंक्शन अपना ऑड हुआ, तो और इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन जो ये फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन जीरो ही लिखा जीरो। जाएगा। यस सर। देख लिया एप्लीकेशन? यस सर। देखो अब मैंने दूसरा एक सम लिखा 147 पेज पे।
इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 से 2 log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, 5 मत पढ़ना। तो उसका आंसर क्या होगा? तो इसी टाइप का सम आपको याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर लॉग फंक्शन जो है और इसमें इसी टाइप का फंक्शन होगा तो वो ऑड ही आएगा। देखिए कैसे आता है। एफ एक्स फंक्शन मैंने देख लिया, ऑपोजिट लिमिट है वो पहला देखना है। ऑपोजिट है ना -2 से 2, यस सर। तो इसीलिए मैं चेक करने क्या जा रहा हूं, फंक्शन ऑड है कि इवन। और तो अभी मैंने -x लिखा x की जगह। देखिए क्या होता है राइट हैंड साइड पे, लॉग ऑफ मॉड करके -x प्लस रूट -x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही बोला जाएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर है। यस सर। अब मैंने आगे पॉजिटिव वाली टर्म लिख दी, नेगेटिव वाली पीछे लिखी। लॉग ऑफ मॉड रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 -x, कोई गलती नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बराबर। यस सर। अब मैंने दोनों ऊपर नीचे दोनों को पहला क्या बोलते हैं आप लोग, सर्ड, सर्ड का कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। नीचे मैंने लिखा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ऊपर वही टर्म से प्रोडक्ट किया। तो ये हाँ। ऑलरेडी है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, उसके साथ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स को प्रोडक्ट करे तो स्क्वायर डिफरेंस आएगा ना। यस स्क्वायर सर। डिफरेंस का मतलब रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट एक्स रूट निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ सर। तो अब एक्स स्क्वायर कट हो गया तो हुआ 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आया, यस ऊपर सर। 1 हो गया। तो नीचे वाली टर्म को मैं ऊपर लिखना चाहूं तो पावर -1 लिखूंगा, बराबर है। यस माइनस सर। बाहर आ गया पावर रूल्स के हिसाब से। तो माइनस लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हुआ, जो दिया है वही फंक्शन आ गया लेकिन माइनस करके आया। यस सर। तो डॉट एफ एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स आया, देयरफॉर ये फंक्शन ऑड है और इसीलिए इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू यानी लिमिट -2 to 2 f(x) dx बराबर 0 हो गई। आसान है ना बोल। यस सर एकदम। अब वो नेक्स्ट वाला सम, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 sin स्क्वेयर x dx। तो इसको हम चेक करेंगे इवन है कि ऑड है, क्योंकि ये जरूरी होगा कट कर उसको चेक करने के लिए। तो एफ एक्स साइन स्क्वेयर एक्स है। अब मैंने एफ ऑफ -x निकाला, क्या करेंगे, साइन स्क्वेयर ऑफ, सर -x। हाँ साइन स्क्वेयर ऑफ -x। अब देखो साइन -x तो माइनस साइन x ही है, यस सर। उसका उसका स्क्वायर। स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ -x बराबर एफ एक्स हुआ, इवन फंक्शन। फंक्शन इवन हो गया। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डबल। -π/2 π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx का डबल ऑफ 0 से π/2 एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यस सर। 2 साइन स्क्वायर एक्स साथ में लेके 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है ना हमको, तो हाँ। फॉर्मूला लिखेंगे। क्योंकि पावर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, तो उसको मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन लिखे, 1 का x कॉस 2x का साइन 0 से π/2। वो हुआ यस कि सर। नहीं? अब मैं x की जगह π/2 लिखने जा रहा हूं। तो π/2 माइनस साइन पाई होगा ना, 2x है इसीलिए, और साइन यस पाई सर। की वैल्यू 0 है। माइनस अगर मैं 0 लिखने जाऊं तो दोनों 0 हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा, साइन 2x भी 0 हो जाएगा, तो मतलब सिर्फ π/2 उसका आंसर है। देख लिया यस बराबर। सर। अब एक और सम है, देखो इंटीग्रेशन -1 से 1 एंड 1/1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी। तो यहां फंक्शन अपना है एफ ऑफ टी 1/1 प्लस टी स्क्वेयर।
डेफिनेटली स्क्वायर देखते हैं टी स्क्वायर को तो वो इवन ही बोला जाएगा, फिर भी चेक करके Yes, बताना sir. पड़ेगा, परीक्षा एग्जाम में तो बताना ही पड़ेगा। एफ ऑफ माइनस टी करके लिखें तो 1/1 प्लस माइनस टी का स्क्वायर, यानी कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर, दैट मीन्स एफ टी। तो एफ FT. ऑफ माइनस टी एफ टी हुआ तो एफ इज इवन, इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी का क्या हो जाएगा, Double. ट्वाइस ट्वाइस 0 से 1। फिर लिमिट -1 से 1 नहीं लिखने का, ट्वाइस ऑफ 0 से 1 Yes. पॉजिटिव वाली लिमिट लिखने का है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये इंटीग्रेशन आपको पता है, टेन इनवर्स टी ही है ना। Tan inverse T. Yes, sir. हाँ, 0 से 1 तो पहले T1 लिखो, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, 5/4. टेन इनवर्स 0 0, तो 2 इंटू 5/4. π/4 एंड देयरफॉर π/2। तो ये जो मैंने चार फॉर्मूला आई थिंक बताई, बराबर, उसके ऊपर Yes, का sir. सम भी मैंने इलस्ट्रेशन में दो दो तीन तीन सम लेके बता दिया। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टाइम पे 149 पेज से एक्सरसाइज 7.11 जो अपनी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है वो आने वाली है। ये आज नहीं हम करते, कल है पीरियड, कल फ्राइडे है, हुसैन साहब का एक्चुअली आता है, लेकिन मैं लेने वाला हूँ, हुसैन साहब का काम है इसीलिए, Yes, sir. उसका मुहर्रम चल रहा है ना इसीलिए। तो मैं कल भी, कल कौन सा टाइम यही है 11 से 12:30। आज तो हम Yes, यहाँ sir. पे बंद कर देते हैं क्योंकि 3 बच्चे ही है नहीं, आप ही अकेले हैं। उसको जरा फोन करके बताना कि भाई हाजिर तो हो, क्यों हुआ, क्या तकलीफ है। मैं तो लिखूंगा अभी मैसेज, बराबर है। हाँ सर, बोलता हूँ sir. हाँ, उन लोगों को बोलना कि भाई ये गड़बड़ नहीं करना यहाँ। और कल, हाँ, वो एग्जाम भी है, कल है ना अपनी, सर आज है, है। मतलब हाँ अपनी कल है, वो DAO की आज है। हाँ, नहीं नहीं वो तो होगी, लेकिन कल अपनी है एग्जाम, यस तो सर. वो ध्यान में रखना। वो क्या बोलते हैं उसको, फोर्टनाइट टेस्ट। क्या मैंने यस. लिखा है, अप टू एक्सरसाइज 7.5 तक, याद है ना। यस सर. हाँ, तो जरा पढ़ लेना बराबर ठीक ठाक से, और उन लोगों को भी फोन करके बता देना। ओके, यस सर. तो यहाँ हम रुक जाते हैं, कल मिलेंगे फिर। ओके, सबको बताना। बाय सर. बाय। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर.